हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. I welcome you all in our next session of INMO flashback series. Guys, in this series we are solving previous year INMO questions and we started with the year 2000 and so far we have completed till INMO 2011. So 12 years के papers तो complete कर चुके हैं already and we are currently going through the INMO 2012 exam paper and उसके भी हमने first 4 questions already कर लिए हैं. You can find all those 70 videos already posted. वो 70 questions हो गए ना, sorry, I think more than 70, 76 questions. So you can find all the videos of all those 76 questions in an order on posted on our channel. Also playlist भी बना हुआ है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, right? But I will suggest one thing guys, जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो, ठीक है? नो पॉइंट इन जस्ट वॉचिंग द वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फायदा नहीं है उस चीज से. ओके, ऑलराइट. तो गाइज आज का जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, मेजरली ज्योमेट्री, उसके बाद तो सॉल्विंग है. विल सी दैट. ओके, so before beginning let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY etc. right? Okay, तो गाइज आज का क्वेश्चन जो है मैं आपको शो कर देता हूँ पहले क्वेश्चन. ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट. Okay, so the question says let ABC be an acute angle triangle and let DEF be points on BC, CA, AB respectively such that AD is the median. A से जो CBN ड्रॉ करो, A से मीडियन ड्रॉ करना है, B से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड CF is the altitude. So guys now these three CBNs need not be concurrent. ठीक है, वो गलती मत करना, बस मैं पहले से बता रहा हूँ. Now inside those मतलब जो 3 पॉइंट्स आपको मिले D, E and F, joining them you form a triangle and the angles of that triangle are given to you as angle C, angle A and angle B respectively. Now what you have to prove in this question is prove that ABC is equilateral. So guys again I'll suggest one thing, please pause this video and try to solve this question by yourself first. ठीक है, सीधा सीधा मतलब ऐसे solution मत देखो तो मजा नहीं आएगा आपको. More than मजा नहीं आने के से अलावा more than anything you will not learn anything good, right? आपको वो retain नहीं होगा आपकी memory के अंदर, तो फायदा नहीं होगा उस चीज का. So it's just that I want you guys to try this question beforehand, then only watch the solution. ठीक है ना, बिना ट्राई किए solution देखने का एक्चुअली बता रहा हूँ कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं होगा. So please try the question yourself and then watch the solution. ठीक है, alright. Because guys again मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डबल फायदा है. अगर हो जाएगा then that is well and good, है ना, तो आपका मोराल बूस्ट होगा एटलीस्ट. और अगर नहीं भी होगा, अगर आपने 1.5 आवर टाइम इस पर अप्लाई किया, उसके बाद जब सोल्यूशन देखोगे ना, you'll actually learn. ओके, मतलब जो एक्चुअली में लर्न होगा आपको अंदर से समझ में आएगा, सुपरफिशियली लर्न करने की बात नहीं है, ठीक है ना. सो लर्न एक्चुअली प्रॉपरली लर्न करोगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अकॉर्डिंग टू इट आल्सो. ओके, ऑलराइट. सो गाइज आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. सो गाइज मैंने थोड़ा सा डायग्राम पहले से बना लिया ऑलरेडी, ठीक है. आई विल मार्क द पॉइंट्स इन दिस देन. ओके, सो लेट मी शो यू सम थिंग्स. सो गाइज द पॉइंट इज ए बी ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC. ठीक है. So guys this is AD, BE and CF. Let me mark some angles guys. कुछ चीजें मैं डायग्राम पे ही करने वाला हूँ, so please pay attention. ठीक है. So guys देखो, सबसे पहले we'll use the general notation, है ना. ABC ट्राइंगल के लिए जो होता है, A के ऑपोजिट जो साइड है, this side is going to be A. Since D is the median, so these two lengths are equal. So this is A/2, this is also A/2, correct? Okay, B से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, so these two angles are B/2 and B/2, है ना. एंड सी से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया है, सो दिस इज एन ऑल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल है. सो गाइस नाउ थिंक अबाउट दिस. ओके, दिस साइड इज बी, ऑपोजिट टू बी इज बी, ऑपोजिट टू सी इज सी, राइट, स्मॉल सी. सो गाइस CF इज एन परपेंडिकुलर. सो गाइस कंसीडर दिस थिंग, क्या ट्राइंगल BFC राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना. ट्राइंगल BFC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड FD इज द मीडियन टू दैट एंड वी नो दैट इन okay, in right triangle BCF, right, in right triangle BCF what will happen, FD is the median, so FD is equal to BD is equal to DC which is equal to A/2, correct. तो वो वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, A/2, राइट. मैं पहले रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ जो चीजें हम डिराइव कर रहे हैं, राइट. द थिंग्स दैट आर नॉट गिवन टू अस वी आर डिराइविंग, राइट. सो गाइज A/2 आ जाएगा, ये लॉजिक क्लियर है. राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा हुआ है कि राइट
पॉइंट राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो देन दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यार BC इज द हाइपोटेन्यूज तो उसके हाफ के इक्वल है, राइट? तो a/2 आना चाहिए बिकॉज BD इज a/2। नाउ गाइज और क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर? वी आर बीइंग गिवन दैट एंगल FDE इज एंगल C। ओके, इसको मैं ना ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज एंगल C, ओके, एंड DEF is angle A, this is angle A and this is angle B, ठीक है? तो ये चीज हमें पता लगी। सो गाइस और बात सोचो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, ट्राइंगल ABC के एंगल्स ABC हैं, ये जो अंदर ट्राइंगल DEF बन रहा है उसके भी एंगल ABC हैं। सो wouldn't you say that two triangles are similar? That triangle ABC is similar to triangle EFD, है ना? सिंपली ए क्राइटेरिया। एंड गाइस अगर आप नोटिस करो FD जो साइड है विच इज ऑपोजिट टू एंगल A, दैट इज ऑलरेडी a/2, राइट? सो विच मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, दैट मीन्स DF अपॉन BC, राइट? DF अपॉन BC विल बी इक्वल टू DE अपॉन AC, अकॉर्डिंगली देख लो आप, एंड EF के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? AB, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन गाइज? DF अपॉन BC कितना है मैं उसकी वैल्यू इधर पुट करके दिखा देता हूँ आपको। व्हाट इज DF? DF इज a/2, दिस इज a/2 अपॉन BC कितना है? A है। सो यू सी गाइज दिस रेशियो इज एक्चुअली 1/2, है ना? 1/2 आ गया ये रेशियो, विच विल मीन व्हाट इज DE? DE is AC/2 where AC is B, so DE is B/2 and similarly EF is going to be C/2। so guys जो लेंथ्स आ गई हमारे पास, DE की वैल्यू कितनी हो गई? B/2 और EF की वैल्यू C/2। guys एक्चुअली इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, सिंपल सा लॉजिक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और आपको एक साइड पता है प्रोपोर्शनेटली हाफ है, राइट? ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उधर साइड है a/2 है ABC ट्राइंगल में, और ट्राइंगल तो सिमिलर करना बहुत इजी था ए क्राइटेरिया से, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। एंड एंगल A के ऑपोजिट साइड क्या है? a/2 एंड बड़े ट्राइंगल में साइड A है, सो वी नो द साइड्स आर प्रोपोर्शनेटली हाफ। सो B/2 C/2 डायरेक्टली भी सोच के लिख सकते हो, नो नीड टू एक्चुअली राइट द होल थिंग, ठीक है ना? लॉजिकल है ये तो। सो गाइस B/2 C/2 साइड्स आ गई आपके पास। नाउ व्हाट एल्स? एक और बात गाइस, इन ट्राइंगल BDF, और या फिर मैं क्या सकता हूँ, ट्राइंगल BDF is isosceles, है ना? ट्राइंगल BDF is isosceles triangle since BD is equal to DF। एंड गाइस देखो टोटल एंगल B/2 है, सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल एंगल B हो गया, B/2 एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, टोटल एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल BFD, वो एंगल भी B होना चाहिए, राइट? इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल BFD, राइट? वो एंगल B के इक्वल हो गया कंप्लीटली, ओके? एंड व्हाट इज एंगल BDF? दिस विल इंप्लाई व्हाट इज एंगल BDF, दैट इज गोइंग टू बी 180 minus 2B, राइट? दैट इज गोइंग टू बी 180 minus 2B। मैं मार्क करता जाऊंगा गाइज, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? 180 minus 2B, करेक्ट? सो गाइज फाइनली व्हाट इज एंगल CDE? ओके, मैं साइड पे लिखता हूं यहाँ पे, व्हाट इज एंगल CDE? दैट इज 180 minus 2B, जो ये वाला एंगल है BDF को माइनस करोगे और एंगल C को भी माइनस कर दोगे, माइनस C, ओके? सो हाउ मच इज इट? 180 कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 2B minus C, करेक्ट? नाउ दिस विल इंप्लाई व्हाट इज एंगल CED? What is angle CED? So 180 minus this 2B minus C plus C, है ना? तो गाइज ये वाला फाइनली एंगल मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वाज 2B minus C जो हमने अभी डिराइव किया था, दिस इज 2B minus C, so this angle finally is going to be 180 minus 2B, because बच्चे 2B minus C plus C is going to be 2B, एंगल EDC plus C is 2B, तो ये कितना बचेगा? 180 minus 2B। So angle CED is finally 180 minus 2B, right? This should be clear. And similarly guys यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये सीधा ही लिख सकते हैं। How much is angle AFE? ये वाला एंगल B है, ये वाला भी एंगल B है इंटरनल, है ना? ये दोनों एंगल्स एंगल B और एंगल B है ना?
So 180 minus 2b directly आ जाएगा. This angle can directly be written as 180 minus 2b because angle BFD is B, angle DFBE जो राइट ग्रीन ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है वो भी B है. तो 180 में से लीनियर एंगल में से दो एंगल B's, ये वाला और ये वाला माइनस हो जाएंगे. सो 180 minus 2b. We'll make use of that also. Okay, इसलिए बता रहा हूँ पहले से. And one more thing, guys, can we find the side length AE by using angle bisector theorem? है ना? In ABC triangle, won't I write AE upon EC by angle bisector theorem? AE upon EC would be equal to C upon A, right? C upon A ratio में है और उसकी length B है. So this will imply what is AE? That is C upon A plus C, है ना? C upon A plus C into B, right? कि AE is to AC, that is C upon A plus C into AE, which is B. तो मैं ये वाली लेंथ भी लिख देता हूँ यहाँ पे. AE लेंथ कितना है? BC upon A plus C. ओके, दिस इज दिस लेंथ. ये इसका यूज करेंगे हम अभी थोड़ी देर में, तो क्लियर हो जाएगा. राइट, ओके. नाउ गाइज, हमने ये जहां तक सब कुछ देख लिया गाइज. नाउ इन ट्राइंगल CED, in triangle CED, let us use sine rule. Okay, applying sine rule, what would you write? CE. Okay, एक काम करते हैं, सिंपल CD. ओके, सिंपल. सो गाइज क्या लिखेंगे साइन रूल में? DE अपॉन साइन C इज इक्वल टू, ये वाला एंगल पिक करते हैं 180 माइनस 2b वाला, उसके सामने वाली साइड क्या है? CD. सो CD अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस 2b. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो DE के ऑपोजिट एंगल C है, वो लिख दिया. DE अपॉन साइन C इज इक्वल टू CD upon 180 minus 2b. So let us put the values guys. DE कितना है? A by 2. So A by 2 into sin C is equal to CD की वैल्यू कितनी है? सॉरी, DE लिखना था ना ऊपर तो. So DE is B by 2. सॉरी, इधर B आएगा. So B by 2 sin C is equal to CD की वैल्यू A by 2 है into guys डिनोमिनेटर में sin of 180 minus 2b sin 2b which is 2 sin B cos B, right? So sin of 180 minus 2b is sin 2b which is 2 sin B cos B. So you can see factor of 2 will get cancelled. ठीक है. So guys cos B की यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, right? Let us try to write cos B from this. Cos B is going to be A upon 2b, A by 2b into sin C upon sin B. Guys, now from sine rule, sin C upon sin B is C by B, right? We know this thing. अगर आप एक ट्राइंगल ABC के अंदर सिंपली साइन रूल के लिए एक्सप्रेशंस क्या आएंगे? दैट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, राइट? बेसिकली आप क्या लिखते हो? A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, है ना? What are you actually implying from that is the sides of the triangle are proportional to the sine of the angles opposite to them in a triangle, right? That is what it means. तभी तो A की वैल्यू क्या आती है? 2r sin है. So it is proposed, 2r is constant, so it is proportional to sine of the angle opposite to that side. So guys, this C, जो आप यहाँ पे sin C by sin B लिखा हुआ है, right? The sin C by sin B value is equal to C by B आप replace कर सकते हो, right? So this gives you guys what is the value of cosine B from this. यहाँ से आपके पास cos B का वैल्यू कितना आएगा? AC upon 2B square, right? AC upon 2B square is the value of cos B. Okay, so this is one of the important expression that we have got. तो इसको बॉक्स कर देते हैं, ठीक है? So AC upon 2B square is one value of cos B. So guys, similarly do this process in triangle AFE के अंदर करते हैं अभी. In triangle AFE, ठीक है? इसके अंदर guys EF साइड मुझे पता है C by 2 है, AE मालूम है मुझे, तो let us use these two sides. So I'll write FE और EF upon sin A is equal to AE upon sin 180 minus 2B. Again the same thing, right? This thing. So again put in the values. EF की वैल्यू कितनी है? C upon 2 into sin A, नीचे पड़ा हुआ है, equal to AE कितना है? That is B into C upon A plus C into now you know sin of 180 minus 2B.
Sine of 180 minus 2b is again sine 2b, which is equal to 2 sine b cos b. Again the factor of 2 will get cancelled. ठीक है, ओके ये सी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑफकोर्स जीरो नहीं हो सकता तो सी भी कैंसिल कर लेते हैं. सो अगेन ट्राई टू राइट cos b फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन गाइस. तो cos b का वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, cos b को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट साइड पे क्या बचेगा, b अपॉन a प्लस सी इंटू साइन a विल बी इन द न्यूमरेटर, सो साइन a अपॉन साइन b. सो विल डू द सेम थिंग अगेन गाइस. साइन a बाय साइन b की वैल्यू क्या लिखोगे आप, दिस इज इक्वल टू a बाई b, है ना, एंड यू कैन सी b विल गेट कैंसल्ड. So cos b will be equal to a upon a plus c. So that is another expression that is very useful. So यहाँ पे भी cos b की वैल्यू लिख लेते हैं, right? We'll box this as well. So cos b की हमारे पास guys दो वैल्यूज आ गई हैं, है ना. So ideally what we should do, इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, है ना. So we can eliminate cos b here. तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. So put this thing AC upon 2b square equal to a upon a plus c. So what you'll observe again, a cancel हो जाएगा this time and cross multiply. So you'll get 2b square is equal to c times a plus c. So one of the important expression, basically I've got a relation among a, b and c, correct? Clear हो गया ये guys सबको, ठीक है. So now what now guys, 2b square is equal to c times a plus c. अब हम आगे कैसे बढ़ें, वी कैन मेक यूज ऑफ कोसाइन बी फॉर्मूला एज वेल. हमें एबीसी ट्राइंगल के अंदर भी तो कोसाइन बी पता है ना. सो मेक यूज ऑफ दैट, लेट अस मेक यूज ऑफ दैट. तो मेरे को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने दो, लेट अस सॉल्व दिस. सो गाइज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इन ट्राइंगल एबीसी यू गेट 2ac cos b is equal to a square plus c square minus b square, करेक्ट. ये कर सकते हैं. सो लेट अस डू वन थिंग गाइज, बी स्क्वायर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका भी यूज करते हैं. मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो माइनस 2ac कर सकता हूँ, थोड़ा बेटर लिखेगा, राइट. लेट अस डू वन थिंग गाइस, देखो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ओके. और कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यू कैन सिंपली पुट इन द वैल्यूज एज वेल, नॉट मच डिफरेंस इन दैट, ठीक है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे. सो 2ac cos b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, let us do one thing, let us write it like this, a square plus c square minus 2ac plus 2ac minus b square, correct. ये करते हैं and rather b square की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, okay. let us not write b square, minus 2ac plus 2ac कर दिया मैंने, minus b square है ना, उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, that is c into a plus c by 2, ठीक है. so let us replace the value. so guys this expression becomes a minus c whole square, ठीक है. और इसमें क्या करते हैं, cos b का वैल्यू डाल देते हैं, ओके. इसको इधर ले जाते हैं, देखो, ओके. लेट अस टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड. सो वी गेट a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ac इंटू 1 माइनस कॉस बी, राइट. इस टर्म को अगर आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ओके. माइनस c इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 0. मैं सब कुछ राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ. नाउ गाइज व्हाट इज 1 माइनस कॉस बी, यूज दिस फॉर्मूला फॉर दैट. a अपॉन a प्लस सी इज cos b. सो 1 में से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos b, ओके. ये आपको खुद ट्राई करना है सॉल्व करते हुए. सो 1 माइनस cos b, 1 माइनस cos b इज एक्चुअली c अपॉन a प्लस सी. देखो गाइस 1 माइनस a अपॉन a प्लस सी अगर करोगे आप, सो a प्लस सी माइनस a, सो दैट इज गोइंग टू बी c अपॉन a प्लस सी, ठीक है ना. सो आई रिप्लेस दैट. चलो मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखा देता हूँ. What is 1 minus cos b? 1 minus cos b is 1 minus a upon a plus c. So अब अगर आप LCM लोगे a plus c minus a upon a plus c. So you see a और a cancel हो जाएगा. So the value is c upon a plus c. Right? So let us replace them. So a minus c whole square plus 2ac into c upon a plus c minus c into a plus c upon 2 equal to 0. So now guys आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे इन दो टर्म्स में से आप कॉमन निकाल सकते हो, c by 2. लेट अस टेक c by 2 कॉमन, a माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेक c by 2 कॉमन, यू विल हैव 4ac राइट, ओके.
गाइस एक और काम करते हैं, c/2 टाइम्स a प्लस c कॉमन निकाल लेते हैं. इज इट beneficial? Let me think. Right, we can take c/2 times a plus c common. So what we'll have, we have 2ac minus we have taken c/2 common and minus a plus c whole square. This is equal to 0. Correct. यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस साइन है, राइट. सो गाइज इनसाइड द ब्रैकेट you'll see 2ac minus a plus c whole square, sorry 4 आएगा यहाँ पे. Correct, I've written it wrong. If you have taken by 2 common, it should be 4 in this place. Right, now it is correct. If you check, let's say 2ac upon a plus c square, a plus c, correct. Now it is fine. So c/2 times a plus c common ले रहे हो तो अंदर 4 आएगा. So 4ac minus a plus c whole square. Quite interestingly guys, अब क्या बनेगा ये देखो. This is 4ac minus a square minus c square minus 2ac. तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस कॉमन a square plus c square minus 2ac. So a minus c का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास फिर से. Right, so you'll have a minus c whole square plus c upon 2 times a plus c into negative of a minus c whole square equal to 0. So basically guys, a minus c square आप कॉमन निकाल सकते हो. a minus c whole square is common. You'll have 1 minus c upon 2 times a plus c. Right, now this will factorize to a minus c whole square. तो अंदर क्या आ जाएगा guys, 2a plus 2c minus c. So you'll get 2a plus c upon 2 times a plus c equal to 0. Of course denominator cannot be 0. And guys ये वाली quantity भी positive है. This is positive है ना, क्योंकि 2a plus c साइड्स ऐड हो रही हैं. So this will imply only one thing, that a equal to c. तो यहां से आपके पास ये तो आ गया. सबसे पहले हमें इक्विलैटरल प्रूव करना है, तो a इक्वल टू c तो हमारे पास आ गया. All that is left is to get that b is also equal to a equal to c, and that is very easy using this formula. 2b square is c times a plus c guys. So if a is equal to c, this implies 2b square is equal to c को a डाल दो, so a into 2a. So of course this will give you b square equal to a square, which means a equal to b. So eventually guys इन दोनों से आपको क्या मिल गया, from these two relations you can write a equal to b equal to c, which means it's an triangle ABC is equilateral. Right, so the triangle ABC is equilateral. You'll get from this a equal to b equal to c. आपका काम हो गया वहां पे. So guys see, देखो लग सकता है कि बहुत लेंथी चला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है guys, but once we found two different values of cos b, we found a relation among a, b and c, and then you have a cosine b formula as well. So using those things we are just solving. मतलब आधा पोर्शन तो सिर्फ अलजेब्रा ही है. Once you get there, after that step onwards, it's just in algebra. और यहाँ पे मैंने a minus c का होल स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश क्यों की, मैं आपको बता देता हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है. The thing is because the equation we formed is in the form of a and c, correct. हमने finally, okay, मैं आपको रीजन बताता हूँ ऐसा किया क्यों. So guys see, at this point और at this step, these two steps, मेरा एक्सप्रेशन मुझे a और c में लेके आना था, राइट. cos b को रिप्लेस भी a और c में किया, ये वाला फॉर्मूला रिप्लेस किया cos b का, राइट. सो द होल इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ a एंड c, एंड आई नो आई हैव टू प्रूव इट टू बी इक्विलैटरल. तो अगर इक्विलैटरल प्रूव करना है तो a इक्वल टू c आना चाहिए. सो आई ट्राइड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू गेट a माइनस c एज अ फैक्टर. दैट वाज द रीजन कि मैं a माइनस c का स्क्वायर a माइनस c बनाता गया फिर अपने आप ही. ओके, अदरवाइज नो बिग डील. अगर आप सिंपल इसको सॉल्व भी कर देते ना, दैट वुड आल्सो हैव रिजल्टेड इन द सेम फॉर्म. कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना. इट्स जस्ट अ वे ऑफ डिफरेंट सॉल्विंग मेथोडोलॉजी का डिफरेंस कह सकते हो. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो आएगा नहीं, आ जाएगा बहुत इजीली. इट्स जस्ट दैट कि एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी जाएगा, मल्टीप्लाई करके बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बट दे विल कैंसिल आउट, है ना. तो इवेंचुअली गेट जस्ट 3 टर्म्स एंड उसको फैक्टराइज करके, लेकिन फाइनली यही आएगा, a माइनस सी होल स्क्वायर इंटू 2a प्लस सी. Okay, you can try that also. So eventually you know ABC are the sides, so 2a plus c positive होगा, है ना. तो a is equal to c is the solution, and then that will result in getting b equal to a. So basically all the three sides are equal, hence the triangle is equilateral. So guys आप इस पे दोबारा एक बार एक लुक देख सकते हो, ठीक है. I'll scroll it down for once, but आप देख सकते हो it's more of algebra once you find the, लेकिन ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से यूज हो रही है, राइट.
सो इट्स लाइक अ टिपिकल वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ INMO आई वुड से। बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, ज्योमेट्री भी यूज हो रही है, अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है वो भी हो गया, है ना, एंड वेरी गुड यूज ऑफ साइन रूल एंड ऑल दोज थिंग्स, कोसाइन रूल एंड एज वेल, राइट। सो if you have any doubt at any step guys, you can re-watch the video, है ना, उस पॉइंट पे देख सकते हो, you'll get the concept. बट गाइज एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे सॉल्व करते हैं ना, ऐसा नहीं कि जस्ट वीडियो देखते जा रहे हो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन अलॉन्ग साइड, साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करो, पॉज करते करते, समझते समझते खुद भी सॉल्व करते चलो, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। क्या पता हाफ ऑफ द क्वेश्चन देखने के बाद आप कर पाओ, रादर ट्राई दैट ऑल्सो, कि थोड़ा सा सोल्यूशन देख लिया, लिखा साथ में, और फिर आगे खुद ही ट्राई किया सॉल्व करने का, क्या उतने के साथ आप हिंट लेके आगे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, राइट, दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई, ओके। So because that will actually inculcate that thing in that feeling of confidence in you guys, ठीक है, कि क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है। So guys that's it from my end. I hope everybody understood this question. आप लोगों को मजा आया इसके अंदर, and if you enjoyed this thing, please like this video and subscribe to our channel so that you get the regular updates guys, okay. So that's it from my end guys. In the next video we'll come with the last question of INMO 2012 and we'll complete INMO 2012 in the next video, okay. Till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.